Hello dear students, let's see torque on a current carrying loop placed in uniform magnetic field. अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉयल रखा है विच इज़ कैरिंग ए करंट आई, फॉर एग्जांपल हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि देयर इज ए रेक्टेंगुलर लूप विच इज़ कैरिंग ए करंट आई, इसकी ए बी सी डी, इसकी लेंथ ए बी इज इक्वल टू एल मान लेते हैं और फिर बी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू मान लेते हैं. So this current carrying coil is placed in a magnetic field. Suppose magnetic field is perpendicular to plane of the board inwards. अंदर की तरफ है. Now if we see if current is flowing in clockwise direction suppose, then force acting on sides AB and CD will be along upward and downward direction by I into L cross B. This force will be ILB upward and downward, and they will cancel each other, and force on AD and BC will be IWB, which will be towards right and left. This we can see by I into L cross B. ये हम लोगों को देखना आता ही है. Now if we see in this condition, net force on the loop is 0 and net torque on the loop is also 0 because their line of action are same and forces are opposite. So net force and net torque both are 0. But if we rotate this coil about an axis, suppose x axis, this axis is suppose x axis, and if we rotate this coil about this x axis by an angle theta, like this, such that now situation becomes like this. Now this angle is theta and coil takes new position A dash, B dash, C dash and D dash. Now as you can see that force IWB will remain same and its line of action will also be same. So there will be no effect on IWB, but now ILB force, which will again be upward and downward, but the difference is that ILB force का line of action अब different हो जाएगा, वो same नहीं रहेगा. तो ILB force का line of action different हो जाएगा. ऐसे केस में this ILB force will try to rotate this coil and it will produce a torque, net torque. इसी सिचुएशन को मैंने आपको नेक्स्ट पेज पर बना के दिखाया है. देखिए मैंने पहले से बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ. इनिशियल पोजीशन इसमें देखिए ABCD इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल ABCD पोजीशन है. आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से दिखाया है ABCD और फाइनली इसको रोटेट कर दिया है. तो फाइनल पोजीशन जो है वो A डैश B डैश C डैश D डैश है. आप ये भी देख सकते हैं इनके बीच का एंगल थीटा है. मैंने फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों आपको दिखाए हैं. साइड व्यू देखने से आपको एक क्लियर हो रहा है. फ्रंट व्यू आप देखिए इनिशियल पोजीशन और साइड व्यू देखिए फाइनल पोजीशन. साइड व्यू से आपको एक क्लियर हो रहा है ऐसे केस में कि ILB और ILB, नाउ दिस ILB फोर्स विल फॉर्म ए कपल, will form a couple. कपल आप लोगों को पता ही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर लगते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर कॉल्ड ए कपल. ऐसे केस में IWB और IWB तो अभी भी
सेम लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं, बट ILB फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गया है। अगर हम देखें तो कपल का टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्सेस। हियर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्स कम्स आउट टू बी W sin theta. So torque can be written as ILB into W sin theta, and we know that L into W is area, so torque comes out to be IAB sin theta. In vector form, this torque can be written as torque is equal to I into A cross B, where A is area vector, its magnitude is equal to area of coil, and direction of area vector can be find out by right hand rule, such that if right hand fingers are curled along current, then outstretched thumb will represent direction of area vector. Now direction of torque will be along A cross B. Direction of torque will be along A cross B. That will be along axis of rotation. In such problems, when torque is acting, we have to solve problems of torque by applying torque equal to I about axis into alpha. That all of us know that in rotational problem, if torque is acting, this coil will rotate, and we need two things: moment of inertia about axis, and alpha will come out if we know torque. So remember one thing, that because this is torque of a couple, so this is independent of एक्सिस ऑफ रोटेशन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी भी कपल का जो टॉर्क होता है, आप लोगों ने रोटेशन में पढ़ा होगा, किसी भी कपल का जो टॉर्क होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है. सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू शुड know this. Second thing about this torque is that direction of torque will be along axis of rotation. So moment of inertia will be considered about an axis along torque. Now along torque there can be many parallel axes. तो कौन सी एक्सिस को लेना है? सपोज टॉर्क इज अलोंग एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्स के अलोंग तो देर आर सेवरल, एक्स एक्स के पैरेलल देर आर सेवरल एक्सिस. तो कौन सी एक्सिस को आपको कंसीडर करना है वो अगर आप देखेंगे तो आप ये ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर आपका कोई और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क,
external force or torque other than magnetic force, then coil will always rotate about an axis parallel to torque and passing through center of mass. Because in such cases net force on the loop is zero. हमें पता है कि अगर करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर नेट फोर्स जीरो लगता है. एंड इफ नेट फोर्स इज जीरो, सेंटर ऑफ मास कैन नॉट मूव. सेंटर ऑफ मास शुड रिमेन एट रेस्ट. एंड वी नो that all points on the axis of rotation are at rest. So in that case, this coil will rotate about an axis parallel to torque and passing through center of mass. अगर ऐसा नहीं है, if coil is hinged somewhere, constrained to move about an axis, अगर कहीं पर हिंज कर दिया है तो दिस कॉइल इज कंस्ट्रेंट टू मूव अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू हिंज. तो जनरली अगर आप हिंज कर देते हैं तो मोशन कंस्ट्रेंट मोशन हो जाता है. ऐसे केस में इफ कॉइल इज कंस्ट्रेंट टू मूव अबाउट एन एक्सिस विच इज हिंज्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. will be calculated by applying parallel axis theorem. Next thing is that direction of this torque will be such that this torque will always try to rotate a coil such that area vector becomes parallel to magnetic field vector. Because in this case थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा एंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होने पर टॉर्क भी 0 होगा एंड फोर्स भी 0 होगा. अब एक चीज़ ध्यान रखें कि दिस टॉर्क विल ऑलवेज ट्राई टू रोटेट ए कॉइल सच दैट एरिया वेक्टर बिकम्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. बिकॉज थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0 का मतलब यह हुआ कि टॉर्क भी 0 है, फोर्स भी 0 है. ये आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है. अगर थीटा 180 डिग्री है तब भी वी कैन से कि टॉर्क और फोर्स दोनों 0 होंगे. बट इन दैट केस ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी. सो अगर आप थीटा इक्वल टू 0 से स्लाइटली डिस्प्लेस करके टॉर्क इसको छोड़ेंगे, कॉइल को थीटा इक्वल टू 0 से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो कॉइल थीटा इक्वल टू 0 की पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है. लेकिन अगर थीटा इक्वल टू 180 से छोड़ेंगे तो 180 में वापस आने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि थीटा इक्वल टू 0 में जाने की कोशिश करेगा, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. तो आपको ये ध्यान रखना है, थीटा इक्वल टू 0 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थीटा इक्वल टू 180 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर इस कॉइल को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए थीटा इक्वल टू 0 से, इफ कॉइल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 एंड रिलीज्ड, तो ऐसे केस में जो टॉर्क लगेगा वो आई ए बी साइन थीटा होगा, which can be written as IAB into theta because sin theta is small, or IAB into theta equal to I about axis into alpha. In that case alpha comes out to be IAB about I axis into theta, and you can say this follows the condition of angular SHM.
and here omega square comes out to be IAB divided by I axis. So if it is slightly displaced from theta equal to 0 and released, then omega square comes out to be IAB upon I axis, and time period of oscillation will be 2 pi divided by omega. From here we can also calculate time period of SHM. If there are n turns of same radius, then torque will become n times. Torque can be written as NIA cross B. Now this quantity NIA can be written as mu cross B, where mu here is called magnetic dipole moment of the coil. जैसे कि डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, वैसे यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है NIA क्रॉस B. तो NIA को हम यहाँ पर म्यू से रिप्लेस कर देते हैं और म्यू को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉइल. तो ऐसे केसेस में दो तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं. एक तो टॉर्क कैलकुलेट करना होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना. और दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन करने के. जैसे कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते थे सिस्टम का, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना होता है. और जैसे डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल टॉर्क लगता था, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर और मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल का बिहेवियर एक जैसा ही होता है. इसीलिए यहाँ पर P की जगह पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पर म्यू डिफाइन कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. बाकी इस पर बेस्ड जब प्रॉब्लम्स करेंगे तभी इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझा जा सकता है. तो पहले यहाँ तक की चीज़ें ढंग से समझें, उसके बाद फिर हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स लेना स्टार्ट करेंगे. ओके, हैव ए गुड डे.